इंडिया ने 2009 में जो बीडीआर बगावत करवाई बांग्लादेश आर्मी और बीडीआर बॉर्डर गार्ड के दरमियान, अब उसका खुलासा हो चुका है। अब उसका राज भी खुल के सामने आ गया है कि उसके पीछे किसी और का नहीं, सिर्फ इंडिया का हाथ था। बांग्लादेश की जो आर्मी थी उसके 57 अहलकार जो हैं वो शहीद हुए थे और बीडीआर के 18 से 20 जो कारकुन हैं वो शहीद हुए थे। और अब बांग्लादेश की सीक्रेट सर्विस ने ये ख़बर शाया की है कि उसके पीछे किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का हाथ था। अब भी इंडिया जो है वो बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है और इस तरह के इंसिडेंट जो है वो बांग्लादेश में करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब बांग्लादेश की आवाम जो है वो समझदार हो चुकी है, बांग्लादेश की जो हुकूमत है वो समझदार हो चुकी है और बांग्लादेश में अब इंडिया का कोई भी इस तरह का ड्रामा नहीं चल सकता। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनो शीन चौधरी। आई होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ 2009 में जो बगावत हुई बांग्लादेश आर्मी और बॉर्डर गार्ड के बीच में, तब उसका नाम बीडीआर था और उसके बाद अब उसका नाम चेंज करके बीजीबी रखा जा चुका है। तो इनके दरमियान जो बगावत हुई वो किसी और ने नहीं करवाई, बल्कि इस तरह की साजिशें सिर्फ और सिर्फ इंडिया करवाता है। और अब ये खबर खुल के सामने आ चुकी है और बहुत तफसीली रिपोर्ट आई है कि ये जो है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इंडिया का हाथ था। सिर्फ तब नहीं, अब भी इंडिया जो है इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है और बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश के लोगों में कभी कोई रूमर फैला देता है, कभी कोई इस तरह की झूठी अफवाह फैला देता है। लेकिन अब बांग्लादेश की सर्विसेज और बांग्लादेश की फोर्सेज जो हैं वो इस बात को समझती हैं, क्योंकि इंडिया यही चाहता है कि बांग्लादेश की जो डिफरेंट फोर्सेज हैं उनकी आपस में लड़ाई हो, उनकी बगावत हो और बांग्लादेश जो डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जाए। लेकिन अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब बांग्लादेश की जो आर्मी है, बांग्लादेश के जो लोग हैं वो इंडिया के इशारों पे नहीं चलते, इंडिया की कठपुतली नहीं बने हुए। मज़ीद डिटेल में देखते हैं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। 16 বছর আগের হত্যাকাণ্ড, তাতেও এবার ভারতের যোগসূত্র খুঁজে পেল বাংলাদেশের মোহাম্মদ ইউনূস সরকার। 11 মাস ধরে তদন্ত করে 2009 সালের পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছে মোহাম্মদ ইউনূসের গঠিত কমিশন। তাতেই চাঞ্চল্যকর দাবি করা হয়েছে। রিপোর্টে দাবি, ওই হত্যাকাণ্ড প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সবুজ সংকেতেই ঘটানো হয়েছিল। আর সেই সঙ্গে যোগ রয়েছে ভারতেরও। প্রসঙ্গত 2009 সালে পিলখানায় বাংলাদেশ রাইফেলসের সদর দপ্তরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল। বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, একসময় তা বাংলাদেশ রাইফেলস বা বিডিআর নামে পরিচিত ছিল। 2009 সালের 25 এবং 26 ফেব্রুয়ারি পিলখানায় তৎকালীন বিডিআর সদর দপ্তরে হামলার ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন বাংলাদেশের মোট 57 জন সেনা আধিকারিক। এর মধ্যে ছিলেন বিডিআরের তৎকালীন মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ। বাংলাদেশ সেনা আধিকারিকদের পাশাপাশি তাদের পরিবারের সদস্য মিলিয়ে মোট নিহতের সংখ্যা ছিল 74 জন। মোহাম্মদ ইউনূস ক্ষমতায় আসার পর জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করেন পিলখানা হত্যাকাণ্ড নিয়ে তদন্ত করার জন্য। এই কমিশনের নেতৃত্বে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আলম ফজলুর রহমান। বিগত 11 মাস তদন্ত চালিয়ে গত রবিবার রিপোর্ট জমা দেয় ওই কমিশন। তাতেই দাবি করা হয়েছে, এই ঘটনা নেপথ্যে ছিলেন বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকারের তৎকালীন সংসদ সদস্য শেখ ফজলে নূর তাপস। অন্যান্য মামলার মতোই বিডিআর হত্যাকাণ্ডে পূর্ববর্তী শেখ হাসিনা সরকারের রাজনৈতিক ব্যর্থতাকে দায়ী করেছে কমিশন। আর সেই সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে ভারতের ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, পিলখানায় সেনা সদর দপ্তরের হত্যাকাণ্ড ছিল পরিকল্পিত। তার প্রধান সমন্বয়ক ছিলেন তাপস। পাশাপাশি তদন্ত কমিশনের দাবি, বাংলাদেশ সেনাকে দুর্বল করে দিতে চেয়েছিল ভারত। রিপোর্টে আরো দাবি করা হয়েছে, ওই সময় 921 জন ভারতীয় বাংলাদেশে এসেছিলেন, তার মধ্যে 67 জনের কোনো হিসাব নেই। তারা কোন দিক দিয়ে এসেছিলেন, কোথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন তা জানা যায়নি। জেনারেল আলম ফজলুর রহমান ইঙ্গিত করা হয়েছে। যদিও এই তদন্ত কমিশনের প্রধান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আলম ফজলুর রহমান রিপোর্টে দাবি করেছেন, ওই সময় প্রতিবেশী বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে চেয়েছিল ভারত। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং বিজেপিকে দুর্বল করতে চেয়েছিল নয়াদিল্লি। এমনকি এই বিষয়ে ভারতের কৈফিয়ত তলব করার সুপারিশও করেছে তদন্ত কমিশন। উল্লেখ্য, এই রিপোর্ট সামনে আসতেই বাংলাদেশের দাবি উঠছে এই বিষয়ে ভারতকে চাপ দেওয়ার জন্য। তবে তদন্ত কমিশনের সুপারিশ এবং দাবি অনুযায়ী সালের ঘটনা নিয়ে নয়াদিল্লিকে কোনো চিঠি ঢাকা দেবে কিনা তা এখনো স্পষ্ট নয়। এখন প্রশ্ন উঠছে, ঢাকা কি করবে? তারা কি পায়ে পা লাগিয়ে ভারতের সঙ্গে ঝগড়া করবে নাকি মধ্যপন্থা গ্রহণ করবে? ঘটনাচক্রে বিষয়টি ঠিক উল্টো। শেখ হাসিনা সরকার যতটাই ভারতের বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করেছে, ঠিক ততটাই মোহাম্মদ ইউনূস সরকার ভারত বিরোধিতা করছে। সেটা আজকের থেকে নয়। গত বছর বাংলাদেশের পালাবদলের পর ইউনূস সরকার পাকিস্তানের কথায় ওঠবোস করে।
এবারও তাই হয়েছে। 16 বছর আগেকার মামলায় শেখ হাসিনা ও ভারতকে জড়িয়ে দেওয়ার অর্থই হলো নয়াদিল্লিকে খোলা চ্যালেঞ্জ দেওয়া। যদিও এই চেষ্টা হয়েছে মিডিয়া রিপোর্টকে হাতিয়ার করে, সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। এখানেই প্রশ্ন উঠছে, বাংলাদেশের মোহাম্মদ ইউনূস সরকার কি চাইছে ভারতের সঙ্গে পায়ে পা লাগিয়ে যুদ্ধে যেতে? আসলে এটা খুব সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা যা চাইছে ইউনূস সরকার। তারা চাইছে বাংলাদেশকে ইউক্রেনে পরিণত করতে, যদি ভারতকে একটা দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে লিপ্ত করা যায়। এখন দেখার ভারত কি পদক্ষেপ নেয়। जी, तो ये थी आज की वीडियो। देखा आपने इसके पीछे किसका हाथ था? सिर्फ और सिर्फ इंडिया का हाथ था। और इंडिया जो इस तरह की साजिशें जो है वो रचता रहता है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इस तरह के हथकंडे जो हैं, इस तरह के ओछे हथकंडे इंडिया इस्तेमाल करता रहता है। और अभी भी इंडिया इस तरह की खबरें फैलाता रहता था कि जनरल बाकरुज़्ज़मान जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, मिलिट्री कू लगा दिया जाएगा, कभी कोई बात तो कभी कोई बात। इस तरह की सारी अफवाहें जो है वो इंडिया फैलाता है। और वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है इसको तो कहना ही बगावत का मीडिया चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बगावत डलवाने की कोशिश करता रहता है। वेस्ट बंगाल के मीडिया की रिपोर्टिंग और वेस्ट बंगाल की जितनी भी न्यूज़ देखी जाए उनमें सिर्फ और सिर्फ बगावत की बातें होती हैं। और जितनी भी उनकी न्यूज़ होती है वो इसी तरह की फ़ेक न्यूज़ होती हैं, और वो इस तरह का प्रोपेगंडा करते रहते हैं ताकि डिफरेंट कंट्रीज़ में सुकून जो है वो कायम ना रह सके। 2009 में जो BDR के सरबराह थे जनरल आलम फजलुर रहमान, जनरल आलम फजलुर रहमान ने जो रिपोर्ट अब सामने लेके आए हैं, और उन्होंने क्लियर कट ये बात की है कि 2009 में जो बगावत करवाई थी वो इंडिया ने करवाई थी, और बांग्लादेश का इसमें नुकसान हुआ। आर्मी के 57 जो हैं लोग शहीद हुए, और दूसरी तरफ BDR के 18 से 20 लोग जो हैं शहीद हुए। और इसके पीछे कौन था? सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया, सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान। तो बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश की आर्मी को भी अब ये समझ आ चुकी है कि वो इस तरह की साजिश में और इस तरह के हथकंडों में नहीं आएंगे। और सैल्यूट जाता है बांग्लादेश की सीक्रेट सर्विस को, बांग्लादेश के इदारों को, जिन्होंने जो है इस पे काम किया और इस राज को खोला, इस राज को अफशा किया, इसको खोला कि इसके पीछे कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया था। ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।